So, welcome to you all to this seventh series of mental health conversation. And today we are talking about how to develop patience, that is grit audit. Okay, we all need to check how much patience do we have. Okay, and fortunately this time we have our students, one from BA Pass, another from environmental sciences, and another from the psychology department and from Hindi department. So we have students from different streams. So as we have already told everyone that here what we are trying, that all the mental anxiety, mental problems, mental health needs to be addressed with the help of heart. Okay, so intervention of heart to solve the problems arising in mind. So here this grit audit refers to that how do you respond to stimulus. Okay, so we easily get irritated, and we are reactionary in the absence of patience. Okay, so that is the reason why we also remain unhappy in our life. So it is very much important to devise ways and means to restore our patience level. Okay, and in this we have to discuss that what role does nature play. Your proximity with the nature, your association with nature, spirituality. What is the role of spirituality in this? Okay, the values. What is the role of emotional health, good emotional health? So all these we need to discuss here, and in the last session only we had concluded that we must have me time, personal time to introspect. So here also we can start with the same thing, that we need to have me time where we analyze where are we going, what are we doing, what are we going to achieve, all these things. Okay, because and this has become all the more important nowadays, because your technology has created so many distractions for our youth, young students, and it's very easy to say that you should concentrate on your studies and everything. Even they understand that, we don't need to tell them. But how to focus upon something which takes care of their all-round development, okay, and which makes them a robust person, a strong person, with full courage and with full patience. That we are going to discuss here today. And for that, today we would like to listen from our young minds that what kind of expectations do they have, and what exactly is the problem before them. Okay, so to start with, we have a very senior most faculty here from English department. We have amongst faculty members, we have someone from philosophy department, English department, from literature side, and then we also have from administration department, school college administration side. So wonderful panel has been created, and the talk has to be very informal kind, where you are able to
come out with views coming straight from your heart. Okay. So, Madhubatta ma'am, what is your opinion? Hello. Thank you, sir. Thank you for including me in this panel discussion. It is a very important quality. I think that because we are living in India, India is a land of spiritualism, and patience is a great spiritual quality. Okay, so when we have this quality, we gain a lot. There is little to lose. Many gains are there, many advantages are there on spiritual and also on material level. You see, even if we are, and the example of it can be taken from the mother figure in the home. The mother is the great example of patience when she is nursing the child. So how much patience she shows when the child is growing up. If we have to, because most of us here are sitting, the grown-up people, but if we have to pay attention, and we must have forgotten those times, but we can watch a mother, newly born child, and the mother, when the mother is paying so much attention and so much showing so much patience to for the growth of the child. Okay, so that can show us the quality and the value that mother is giving to the child's life. Okay, so that is there. And how can we, you see, in the cooking, we can see the other example is the cooking. If the mother is cooking food with love, care, and patience, so that food is going to give satisfaction to everyone, apart from the good taste that is always appreciated by the family members, the happiness that is being created by the good food that is cooked with patience. So mother is a source of example, you see, source of patience, and we can see that she's a very good example. And also if we look upon Mother Earth, so that is a great example, because Mother Earth is having so much patience with all those who are trampling over her, doing all kinds of digging, all kinds of things. If we look at mother with spiritualism in our heart, with the emotions in our heart, and just like a mother figure, so we see that she is bearing everything so that the humanity can survive. So many plants are growing over mother, so many things are happening, but mother earth is patiently bearing everything. So mother earth is very patient, and the concrete example of that, if we are still not able to understand Mother Earth in that sense, we can take the example from our home itself, from the mother. Okay, so this quality is going to add great values to our life, because we can build good relationships with patience. We are often spoiling our relations because of impatience. Our friends are angry with us. We are not listening them patiently, or we are not trying to test the friendship with patience. Okay, so sometimes some person may be in bad mood or bad, temper. So we just spoil the relationship with our friends, our family members, because of our impatient nature. So it is going to give us great benefits in life, in material as well as in spiritual life. Thank you very much. Wonderful. Madhuji very nicely explained that, motherhood truths and principles. Nowadays, many people are not valuing all these things, but those were the reasons why, women used to be the power center in the family. Okay, she is looking after everyone, everyone, and doing her duties so well. Now that they have started going to the office and doing double work and homework also, and outside also. So the primary work gets neglected. Okay, that is a source of anxiety for all women, and then they are in problems. Today, basically, as Madhuji said, we are interested in knowing your personal experience. Okay, how
you faced with a problem relating to patients and how in day-to-day affairs you could solve them. Okay. Well, it's an extremely personal question that I'm going to ask Nidhi Mathur. Okay. Nidhi Mathur recently got married, and when she joined the joint family, and then perhaps she was expected to do the household also, okay, and she is a member of our college also. She is a technical assistant here, so she has to come here also and look after the family also. So then she suggested, why don't we have some cook, okay, so that we are not having some problems. Now the mother-in-law was not of this opinion. She said that no, you should do it. Okay. So then somehow, after some time, she convinced mother-in-law that on experimental basis, let us try this. Okay. And having full patience. Okay. Not reacting to and not just saying that. How can I do both the things at the same time? Okay. So this is injustice. This is a reactionary approach, that you feel something, the problem, and you react to it. But she did it in a different way. And then when mother-in-law agreed that, okay, on experimental basis, for a few days, we can try this, oh, she liked it so much that she said that, fine, a wonderful advice you had given, and that cook will remain, permanently in our house. So we would like to listen to her personal experience with regard to that. Thank you so much, sir, for making me a part of this wonderful panel discussion. So, like sir has already cited this personal experience of mine. Yes, there were a few ups and downs. Everybody faces such ups and downs after entering a new family, but patience is what is required, and that is a virtue which everybody of us should have. So nowadays that we are seeing that this is something which we are lacking because of the constant rat race that we are in, and because of the technological advancements also, we want to have the results in a matter of few seconds. But since I've been in the School of Happiness for a long time, I somehow had managed to have that patience. Although personally speaking, I am an impatient person, but at that point of time, somehow I managed to have, and that patient, I convinced my in-laws, and finally, after a long period of time, they also agreed to what I was suggesting. So, and I always believe that समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है. So this is what I have always believed in, and but ये तो कहावत है, एक मुहावरा है. Everybody does not believe and everybody does not agree to what this is, but this is actually very true. We must actually focus on this and understand that good things come to those who wait, who patiently wait. और पेशेंटली वेट उस दौरान आपको हार्ड वर्क, मेंटली पॉजिटिव रहना, हार्ड वर्क करते रहना, करेजियस रहना बहुत ज़रूरी है. यू मस्ट नॉट गिव अप. Also, I would like to say that nowadays that we are witnessing that there's a lot of road rage there's a lot of road rage. This is what is also related to people being very impatient on the roads. Constantly आप हॉर्न बजाते हो, constantly honk करते हो to manage to go ahead of others. 5-10 मिनट आप पहले भी पहुंच जाओगे तो शायद जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं, जो कमोशन है, जो स्ट्रेस है, वो कम हो जाएगा. और आई हैव ऑल्सो सीन दिस ऑन द रोड दैट पीपल ड्राइविंग कार्स वो हॉन्क करना शुरू कर देते हैं रिक्शा पुलर्स को कि हटो. और currently we are seeing a heat wave, a massive heat wave. So कम से कम इतना तो रियलाइज़ करो कि जो रिक्शा पुलर है उसकी कुछ
उसकी कुछ मजबूरी है कि वो रिक्शा चला रहा है और किस वजह से वो रास्ता नहीं दे पा रहा है, बिकॉज ही इज़ कैरिंग सो मच ऑफ लोड. सो एटलीस्ट आई मीन दिस इज़ समथिंग विच आई रियली फील बैड अबाउट. और कभी कभी तो मुझे बहुत I feel as if I get out of the car and speak to that person who's constantly honking कि यार थोड़ा सा तो आप पेशेंस रखो ना. आपके जैसे और कितने लोग हैं जो घर जल्दी पहुंचना चाह रहे हैं. इनफैक्ट वो रिक्शा पुलिस शायद खुद घर जल्दी पहुंचना चाह रहा हो, but at least have that much of decency and patience to give him that space to on the road. Likewise also we see that people jump out of queues. पॉपकॉर्न की लाइन में खड़े हैं, मूवी टिकट्स की लाइन में खड़े हैं, मॉल की लाइन में खड़े हैं पेमेंट के लिए. इम्पेशेंट पीपल रनिंग आउट ऑफ लाइन्स, जंपिंग अहेड ऑफ अदर्स. मतलब 4-5 मिनट अगर आप पहले भी पहुंच जाओगे तो आई वंडर ऐसा क्या आप अचीव कर लोगे. सो दिस इज़ what I have realized, that over the period of time I have seen that change in myself. Initially I was also a little impatient. यार मेरा यहाँ इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, क्रैक नहीं हुआ, what will I do in my life? But over the period of time now, when I sit back and look, I realize that okay, that was not in my destiny. This job was in my destiny. So I request to all the viewers who are watching this video to have grit, have patience in your life. आज नहीं तो कल आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा. Thank you, sir. Wonderful, Nidhi. Whatever you felt at heart, you have spoken those things. Okay, no role of your intellect or mind, and basically we have initiated such conversation for that purpose only. You know, the biggest casualty of technological evolution, that we are getting distanced with the nature. नेचर से हम दूर होते जा रहे हैं और हमारा नेचर खराब होता जा रहा है. तो पेशेंस की जहाँ तक बात है, ट्रीज़ के साथ अगर आप संपर्क रखें, जितना ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रीन स्पेस मिलेगा उतने ही मन में आपको शांति रहेगी. जब आप इरिटेटेड होते हो, रिएक्शनरी होते हो, that is the sign of your weakness. Okay, intolerance is a sign of your weakness. Okay, आप में बर्दाश्त की क्षमता अगर कम है, ये आपकी कमजोरी दिखा रही है. अगर आप, जैसा निधि ने कहा कि रिक्शे वाले पे गुस्सा आ रहे हैं, उस पे गुस्सा आ रहे हैं, तो गुस्सा जो है वो इस बात को बताता है कि आप में बर्दाश्त की क्षमता नहीं है, आप कमज़ोर हैं. तो कहने का मतलब यह है कि दो बातें हैं कि नेचर से हमारे मानसिक तनाव दूर होती है, मानसिक जो स्वास्थ्य है वो ठीक होता है, और जो योगा प्राणायाम वगैरह है इससे शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होता है. इन दोनों का बहुत जीवन में महत्व है. तो मैं ये जानना चाहूँगा कि प्रकृति के साथ हम फिर इस जो पेशेंस को डेवलप करने के लिए कैसे जुड़ सकते हैं और क्यों हम दूर होते जा रहे हैं. एनीवन. सर, जो व्हाट आई थिंक कि हम दूर होते जा रहे हैं वो है कि हम अपनी सराउंडिंग्स को बहुत देखते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं. हम देख रहे हैं कि अरे मेरे सारे दोस्त, मेरी पूरी सोसाइटी के लोग सब ये कर रहे हैं, कितना बढ़िया फ़ोन लिया है, क्या बात है, सेल्फी शूट कर रहे हैं, इंस्टा पे डाल रहे हैं, और मतलब वो उनका क्राइटेरिया बन गया उस रिपोर्ट कार्ड का. तो लेकिन हम देखते ही नहीं कि मतलब नेचर वाले जो है वो भी थोड़े कूल लगते हैं. हमें कूल कौन से लग रहे हैं? जिनके पास वो आईफोन के साथ सेल्फी है. सर, व्हाट आई थिंक इज़ कि मतलब हम अपने सोसाइटीज़ में लोगों को देखते हैं कि वो उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कि मतलब उस इंसान ने, उस एक यंग यूथ ने जो इतना स्मार्ट दिख रहा है, उसने आईफोन लिया, एक फ़ोन का नया मॉडल लिया. तो बेसिकली कोई भी उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहा जो नेचर के करीब है, कोई भी उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहा जो मतलब
नेचर में योगा कर रहा है या फिर गार्डनिंग कर रहा है, बिल्कुल नहीं। वो उन्हें अप्रिशिएट कर रहा है और इन्फ्लुएंसर भी वही बन रहे हैं जो नेचर से दूर जाते जा रहे हैं। तो वो देख रहे हैं कि उनके पास ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, तो अगर हम उन्हें कॉपी पेस्ट कर ले तो हमारे पास भी ज़्यादा लाइक्स होंगे, हमारा सोशल मीडिया चैनल भी ग्रो करेगा। तो हम उन्हें कॉपी पेस्ट करते हैं, ना कि रेदर देन उन लोगों को जो कि नेचर के करीब है। तो जैसे सर ने बोला कि नेचर से दूर जा रहे हो और आपका नेचर ही ख़राब हो रहा है, तो हम इस नज़रिए से नहीं देखते। तो दैट्स द पॉइंट। और मैंने मतलब जो मैं यूज़ करता हूँ खुद को पेशेंट रखने के लिए, वो है कि अगर कोई भी कुछ ऐसा बोल दे अनयूजुअल अनइवन जो मेरे को इरिटेट कर दे, हेजिटेट कर दे, तो बेसिकली मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ और मैं हर एक इंसान के नज़रिए से उस सिचुएशन को देखने की कोशिश करता हूँ। नॉट ओनली सिर्फ अपने नज़रिए से कि अरे उसने मेरे को हर्ट कर दिया, लेकिन हर एक इंसान के नज़रिए से कि उसके हिसाब से इस सिचुएशन में मैं कैसे कर रहा हूँ। या फिर बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि एक फ्यूचर यू बन जाता हूँ, जैसे कि 30-40 साल का स्पर्श जो है वो यहाँ पे खड़ा है और वो इस इवेंट को देख रहा है, तो मैं उससे एडवाइस लेता हूँ कि आप में इतनी मैच्योरिटी आ गई, इतनी विजडम आ गई, तो आप अगर मेरे को आप क्या एडवाइस करेंगे कि मैं क्या करूँ। मतलब मैं उस इंसान पे भड़क जाऊँ या फिर मैं कैसे सोचूं, किस तरीके के थॉट्स मेरे दिमाग में चलने चाहिए, किस तरीके के परसेप्शंस होने चाहिए, कैसे मैं इंटरप्रेट करूं, कैसे मैं इम्पैथी के साथ वैसे ही सोचने की कोशिश करूं जैसे वो सामने वाला इंसान मेरे बारे में सोच रहा है। सो अगर हम थोड़े पेशेंस के साथ हर एक इंसान के नज़रिए से इस सिचुएशन को देखें तो हम अपना वो जो ईगो के वजह से एंगर आ रहा है, जो हम भड़क जाते हैं किसी पे, वो वैसा नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि तुमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि अधिकांश लोग जो हैं दूसरों की ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे। दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे को कॉपी करना, दूसरों का अप्रूवल लेना कि वो अप्रूव कर रहे हैं लोग तब ठीक है। तो आप इसमें क्या होता है कि हर चीज़ के लिए आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। आप खुशी के लिए भी आप दूसरों पर निर्भर हैं, जबकि आपको हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस जो है वो अंदर से आनी है। इट इज़ द इनर स्टेट ऑफ माइंड। लेकिन हम दूसरी तरफ, दूसरे की दुनिया में देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हमें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरे का जो नज़रिया है उसको भी सोचने और समझने की कोशिश होनी चाहिए। सिर्फ अपने विचार से, जब हम चाहते हैं कि हमारा विचार परफेक्ट है, तब हम दूसरे के विचार को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। यह एक बहुत बड़ी कमी है हमारे में, और तभी हमें गुस्सा भी आता है कि हमारी तरह क्यों नहीं सोच रहा है। और कुछ कहना चाहते हैं? To add to my friend's point here, that we are not staying too close to our nature, and to be honest, our nature is about being happy. We don't want to be sad, but sometimes we tend to believe that this is the truth, that we have to get irritated, or sometimes it's not even true that we are being sad. कभी कभार होता नहीं है, और सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कई बार कि हम उनको सच मानने लगते हैं बट वो सच होती नहीं है। तो नेचर के साथ ट्रू रहना का मतलब है कि अपनी हैप्पीनेस के साथ ट्रू रहना एंड बिलीविंग इन आवर हैप्पीनेस। एंड इसमें पेशेंस का रोल ऐसे आता है क्योंकि अभी जैसे कोविड लॉकडाउन हो गया था, हमारा पेशेंस का काफ़ी बड़ा टेस्ट था वो, एंड वी हैव ऑल क्लियर्ड दैट बिकॉज वी हैड अ होप कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, and we had a firm belief in our happiness that we have to be happy. So I feel that we should have the hope, we should have the courage, we should have the grit that yes, we will make things happen. And सबसे ज़रूरी बात है, जैसे कि आप सर ने भी बताया कि हम दूसरों से वैलिडेशन ले रहे हैं, दूसरों से वैलिडेशन लेने के बजाय हमें खुद पे बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि what I am doing, I believe in that. Even if I have a lesser self, we all have two selves. We have a greater self, like Sparshwit said, which is very wise, and we have a lesser self, which is the devil. We all have it. We have to believe in the greater self, that whatever we are doing, we have a purpose for that. And जो lesser self है, जो react करता है, हमें उसको भी विश्वास दिलवाना है कि you can believe on us. जो हमारी बुराइयां हैं
हमें उनको भी विश्वास दिलाना है कि येस देयर इज़ अ वे आउट. सो मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी का भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल आता है, क्योंकि जब भी हम लोग एकांत में जाते हैं, जब भी हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, हम पहचान पाते हैं कि हमारी कमियां हैं कहाँ पे, और इन कमियों को ठीक करने का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनको एक्सेप्ट करना. That yes, we sometimes react to some situations. Yes, we react when someone says something bad to us. But that doesn't mean that we will start reacting. We accept it, but we don't react to it. So accepting is very important. And sometimes we don't even need to fight it. कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे एग्जाम्पल दिया था कि ट्रैफिक जैम में वी आर जस्ट हॉन्किंग एंड हॉन्किंग. सो वी डोंट हैव टू फाइट दैट. वी जस्ट हैव टू लेट इट गो एट टाइम्स एंड थिंक अबाउट इट इन अ पॉजिटिव वे. दैट्स ऑल फ्रॉम माय बहुत साइड. अच्छी बात है. ये मुझे ये महसूस होता है कि इस तरीके के विचारों को हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके जो मन में जो बातें उठती हैं उसे हमें हमेशा सुनना चाहिए, और उसके बाद फिर हमें बताना चाहिए कि कहाँ तक आप ठीक हो, कहाँ और सुधार की ज़रूरत है. तो जो उनके विचार हैं उनको हम लगातार अगर सुनते रहें तो शायद काफ़ी बदलाव होगा और काफ़ी इसमें हमें सुधार मिलेगा. अर्चना जी, आपको कुछ कहना है? Thank you, sir, for this wonderful topic, patience. तो हाँ, नेचर्स हमें बहुत पेशेंस सिखाते हैं. नेचर, फिर मधु मैम ने भी मेंशन किया माँ का, वो हमारे लाइफ में पेशेंस सिखाता है. वो किस तरह से, क्योंकि नेचर अपने टाइम के हिसाब से काम करता है. एंड जस्ट टू टेक एग्जांपल फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, जब मैं ऐसे बचपन में ऐसे म्यूज़िक सीखने का बहुत शौक़ होता था. नॉट दैट आई वॉज लाइक वेरी मच इनटू इट, बट ऐसा होता है ना, आप टीवी देखते हो, गाना देखते हो, तो वहाँ पे रॉक गिटार बजा रहा है, वायलिन बजा रहा है, देन यू वांट टू प्ले लाइक दैम. तो माय अंकल वाज इज़ अ म्यूजिशियन, तो मैं अंकल के पास जाते थे, अंकल मुझे वायलिन सीखना है, तो वो कुछ की दे देते थे, तो ये बजाओ. बट आई वॉज सो रेस्टलेस, मैं आई डोंट वांट टू जस्ट प्ले की, आई वांट टू प्ले सॉन्ग. तो मेरे चाचा ने मुझे बोला था तुम सीख नहीं पाओगे बिकॉज यू आर वेरी रेस्टलेस, यू आर इम्पेशेंट. आप पहले की सीखो, देन यू प्ले म्यूज़िक, बट यू वांट टू प्ले म्यूज़िक. ये बचपन की बात थी. तो क्लास 12 के बाद जब मैं लाइक अपने स्टेट से बाहर गया फॉर फर्दर एजुकेशन, तो आई वेंट टू माई फादर एंड मदर सेपरेटली, बिकॉज अगर मैं दोनों को साथ में एक बात करती हूँ देन दे विल हैव देयर ओन आर्ग्यूमेंट एंड दे विल नॉट टॉक टू मी, इन द सेंस कि दे विल स्टार्ट आर्ग्यूइंग. तो आई वेंट टू देम सेपरेटली. पहले मैं पापा के पास गया, तो मैंने बोला व्हाट शुड आई डू नाउ दैट आई एम गोइंग आउट ऑफ द स्टेट. तो पापा ने मुझे कहा था कि देखो सक्सेस होना है, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज वी हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज, बट यू शुड हैव अ मीनिंगफुल लाइफ, a worthful life. Okay, that was first advice. Then I went to my mother and asked, okay, I have been suggested like this to have a meaningful life. लेकिन how do I have meaningful life? Tell me. तो कि my mother, she thought, she took some time to think about it and बोला साकला, बेटा जब प्यार से बोलते हैं तो मुझे बोला साकला तुम बाहर जा रहे हो, हम अपनी तरफ से हम जो दे सकते हैं वी आर गिविंग यू, बट जो बाकी का रास्ता है वो तुमको खुद चलना है. और वो ये ध्यान रखना है कि अगर आप पानी में डुबकी लगा रहे हो तो कोशिश करो कि आपके हाथ में एटलीस्ट मोती आए. अगर आप पेड़ पे चढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आपके हाथ में फल आए. तो ये ध्यान रखना है कि आप लाइफ को आप वेस्ट मत करना, और सब चीज़ के लिए धैर्य, ठहराव बहुत इम्पॉर्टेंट है. Then like I used to ask my questions. She took the example of her food, कि आपका food इतना अच्छा taste कैसे करता है. Then she used to tell me my food tastes good because मैं बहुत detailing के साथ और patience के साथ I cook. तो ये मन में मैं लेके आई वेंट आउटसाइड माई स्टेट फॉर एजुकेशन एंड ऑल. हाँ, वो लेकिन वो पेशेंस इनकलकेट करना मुश्किल होता है, बिकॉज वही रेस्टलेस वाला एज ना, कि आप हर चीज़ जल्दी जल्दी करना चाहते हो. देन
देन आई केम अक्रॉस प्रोफेसर पीसी वगैरह जो हमें फ़िलासफ़ी पढ़ाते थे, तो वो पहली बात, डोंट रश, ठहराव लाना है, बिकॉज आपने जो सीखा है वो सीखा है, लेकिन उसको आर्टिकुलेट करने के लिए आपको ठहराव बहुत ज़रूरी है. ओके, एंड if you are not having patient in your life, just think the opposite, what you are missing out from not being patient. Okay, if you are not being patient, the opposite of patient is you are compromising your life, and a compromised life is not a very good life. Suppose आप खाने पे compromise करते हो, then you are compromising your health. आप अगर आप स्टूडेंट हो, आप टाइम अपना कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, आप पढ़ाई करने में लाइक पेशेंस नहीं है, तो आप ये जो आप अपना जो क्रेडिट स्कोर है, मार्क्स है, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो. तो थिंकिंग द अदर वे राउंड, कि आप अगर पेशेंस नहीं हो तो आप अपने लाइफ में और अलग तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, दैट इज़ एंड नॉट अ वेरी मीनिंगफुल लाइफ और वर्थ वेल लाइफ, आई वुड से. Now, one thing to note is also that being patient is not being slow. कभी कभी हमें लगता है कि पेशेंस स्लो होना होता है. नो, बट बीइंग पेशेंट इज बीइंग विद टाइम, क्योंकि जस्ट लाइक व्हाट निधि मैम हैज सेड, नेचर का अपना टाइम होता है एंड इट टेक्स इट्स ओन टाइम टू हील. तो हमें बस वो धैर्य हमें अपने मन में रखना है और अपने साथ में रखना है. जस्ट लाइक भगवत गीता जो है वो एक बहुत ही, अगर आप अपने लाइफ में एज ए शिक्षा लेना चाहते हो तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं हम उसको. तो भगवत गीता के वर्स 2 श्लोक 70 में भी लिखा है कि हमारे ज़िंदगी में ओशन जैसा ठहराव होना चाहिए, चाहे उसमें जितना भी कुछ गिरे बट ठहराव रहे, बिकॉज ठहराव से ही हम एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं. थैंक यू सर. बहुत अच्छी बात अर्चना जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस. मेरे दिमाग में एक बात आ रही है जो निधि ने पॉइंट आउट किया कि हमें रिक्शे वाले पे गुस्सा क्यों आता है. कंपैशन, काइंडनेस, रिस्पेक्टफुलनेस दूसरों के प्रति, जब ये भावना रहती है तो शायद हमें गुस्सा रिक्शे वाले पे नहीं आएगा. वो भी इंसान है और इस सड़क पर जितना हमारा अधिकार है उतना उसका भी है. ऐसा तो नहीं कि सरकार ने सड़क हमारे लिए बना लिया है, गाड़ी खरीद लिया, इसका मतलब सड़क मेरे लिए है. तो किस परिस्थिति में वो बेचारा चला रहा है, वो भी इंसान है. तो हैव एम्पैथी एंड कंपैशन. दूसरा आदमी अगर बहुत गुस्से में बात कर रहा है आपसे, हैव मर्सी ऑन हिम, कि पता नहीं इसको इल एजुकेशन है, इसकी समझ कुछ गड़बड़ है, इसकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है, इसीलिए शायद चोरी कर रहा है. तो महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि हेट द सिन नॉट द सिनर, हेट द सिन नॉट द सिनर. तो ये सारी वैल्यूज़ को अगर दिमाग में आदमी रखे तो शायद उसका पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा होगा. लेकिन घूम फिर के वही बात आती है नेचर के ऊपर कि you should have communion with nature. Okay, then only you will have patience. बोलो. थैंक यू सर. मेरा ये मानना है कि जैसे आपने बोला कि पेशेंस हमें रखने चाहिए, जैसे रिक्शे वाले, उसमें क्या होता है कि जो मान लीजिए कोई लेबर है, वो काम कर रहा है और कोई कार से जा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि भले वो कार वाला बहुत मतलब पुअर से रिच बना हो, लेकिन उन लोगों के अंदर ये होता है कि इसने पढ़ाई नहीं करी या ये ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करता है या इसको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला जिस वजह से ये ऐसा काम कर रहा है, तो उसको गलत नज़र से देखा जाता है. जैसे कि फ्रेंड ने बोला, मेरे ध्रुव ने बोला भी कि जैसे कोरोना में हमें पेशेंट्स का पता चला था कि पेशेंट्स हमें रखने चाहिए,
उसमें हमारी जैसे फैमिली ने भी हमारे ऊपर पेशेंस रखे। उस टाइम पे वो एक हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हम अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, उनको समझें कि वो लोग हमारे लिए क्या फ़ील करते हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं। पर हमने उस टाइम सोशल मीडिया की तरफ फोकस किया। उस टाइम हमने अपना फ्रेंड अपने सोशल मीडिया को अपने फ़ोन को बनाया, अपनी फैमिली मेम्बर से अपनी बातें शेयर नहीं करी। जैसे कि मैम ने बोला कि मदर के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं, वैसे ही मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगी। जैसे टीचर्स के अंदर ही बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि एक टीचर, मम्मी तो घर में 2 लोग हैं 3 लोग हैं, फैमिली है उनको करती हैं, लेकिन टीचर्स तो अपनी फैमिली है, एक इतने सारे बच्चे हैं, उन लोगों की फैमिली को हैंडल करना, उन बच्चों को हैंडल करना, उन बच्चों की प्रॉब्लम्स करना। हमारे देश के जो सोल्जर्स हैं वो कैसे कैसे अपनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, अपनी पूरी फैमिली को छोड़ते हैं, कैसे पेशेंस रखते हैं कि पूरी फैमिली को छोड़ के वो लोग अपना बॉर्डर पे जाते हैं, फ़ाइट करते हैं, चाहे माइंड में कितनी भी टेंशन हो, पर उन्हें फ़ाइट करनी है, उन्हें अपने देश को पहले देखना है। तो मेरे लिए ये मानना है कि हमें पेशेंस अगर हम नहीं कर पा रहे तो हमें अपने से ऊपर लेवल को, कोई आइडल को सोचना चाहिए कि वो कैसे पेशेंस रखते हैं। कुछ टाइम के लिए सबके अंदर गुस्सा आता है, सोचते हैं हमने बोला क्यों नहीं, क्योंकि वो हमारे अंदर ईगो आ जाता है कि हमने बोला क्यों नहीं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हम अपने अंदर पेशेंस रखते हैं तो कुछ टाइम बाद हमारा माइंड जब शांत होता है, फिर हम किसी बड़े अपने मम्मी पापा से, अपने किसी मतलब किसी फैमिली मेम्बर से जो हमसे बड़े हैं, उनसे अगर हम पूछते हैं कि हमने सही किया तो नहीं किया, तो वो लोग जब हमें एडवाइस करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हमने पेशेंस रख के बहुत अच्छा किया। अगर हम वही फ़ाइट करेंगे तो हम 2-3 दिन तक डिस्टर्ब रहेंगे। हम ये सोचेंगे कि हमने फ़ाइट किया, कहीं कुछ हो ना जाए, फिर फैमिली तक बात ना आए, वो टेंशन रहेगा। इससे अच्छा है कि एक वर्ड पेशेंस, जो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर पेशेंस हम रख लें तो बहुत सी चीज़ें हैंडल हो सकती हैं। थैंक यू सर। सर मैं सारी चीज़ों को कंक्लूड करना चाहूँगी, लाइक नेचर, मैम का पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारी जो मदर्स होती हैं कितनी पेशेंस होती हैं, या इन्होंने जो बताया कि हम लोग छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लग जाते हैं बात बात पर। तो सर मतलब मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मतलब बचपन से लेकर आज तक अभी हमारी जो स्टूडेंट लाइफ है या हमारी कॉलेज लाइफ है, तो हम लोग इतना सब कुछ देखते हैं और कभी कभी तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मतलब घर से, फिर टीचर्स का भी, मतलब टीचर्स खैर मतलब सपोर्ट तो करते हैं, बट कभी कभी होता है ना कि मतलब कुछ टीचर ने बोल दिया, फिर मम्मा ने बोल दिया, तो गुस्सा आ जाता है बात बात पर, और फिर हम लोग दुखी होकर बैठ जाते हैं, फिर ऐसे थोड़ा सोचने लग जाते हैं। तो फिर सोचते हैं कि एक टाइम पर आता है, फिर सर आपने मी टाइम की बात की थी, तो सर आई थिंक 10 या 11 साल की थी जब मैं, तो उस टाइम पे मेरे को ऐसे महसूस होता था कि मतलब सब लोगों से ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, क्योंकि मुझे कोई मतलब उस टाइम पे पसंद ही नहीं आता था, ऐसा होता था। लेकिन जब मैंने मी टाइम निकालना स्टार्ट किया अपने लिए रात को, तो मतलब मैंने महसूस किया कि चीज़ें कितनी सिंपल हो जाती हैं जब हम लोग बाकी की चीज़ों को महसूस करने लग जाते हैं। छोटी सी चीज़ सर कि हवा का बहना, सर अगर उसको महसूस करते हैं तो कितना रिलैक्सेशन फ़ील होता है उस टाइम पे हम लोगों को। या फिर सर नेचर, तो सर नेचर तो मतलब नेचर के बहुत करीब हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहती, लेकिन हाँ मैं नेचर के बहुत पास रहती हूँ। सर ट्रीज़ हो गई, लोगों की हेल्प करना हो गया, या फिर पानी के साथ मतलब थोड़ा सा मतलब होता है ना, फ्रेंडली हो जाते हैं हम लोग, उसको छूना या फिर ऐसे कोई भी छोटी चीज़ें। तो मतलब नेचर के बहुत पास रहकर भी मेरे को ये महसूस हुआ कि पेशेंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपसे कोई बात कर रहा है आके, या फिर आप पे कोई गुस्सा कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर तुरंत रिएक्ट कर दो, क्योंकि आपका वो एक ईगो आ जाना कि मैंने क्यों नहीं बोला, ये वाला जो आपने भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। तो उस टाइम पे हम लोगों को रियलाइज़ होता कि मतलब जो सिचुएशन, हम लोग जिस सिचुएशन में अभी अगर हम लोग होते उसकी जगह पे, तो फिर हम लोग क्या करते, जो कि ध्रुव ने पॉइंट रखा था। तो यही बातें हैं। और अगर मेरा मानना है कि अगर आपके पास अच्छा दिल है, तो जिसमें कि आप सबको अपना मानते हो, सबके लिए फ़ील करते हो, सबको मतलब ऐसा कि हाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और सब लोगों की मदद हमें करनी चाहिए पर्सनल लेवल पर। अगर आपके अंदर फीलिंग्स है, आपके पास अच्छा दिल है, तो फिर आपको मतलब पेशेंस तो अपने आप में खुद में ही आ जाएगा। तो एक ये चीज़ होती है सर। बहुत अच्छी बात। अगर हम पेशेंस की बात करें, इसका सीधा सीधा संबंध है हमारे ब्लड प्रेशर के साथ। ब्लड प्रेशर हाई होता है, हमें बर्दाश्त नहीं है, इरिटेशन होता है। ये मैं बायोलॉजिकली, मेडिकली मैं बात कर रहा हूँ। मधु बट्टा मैम, ब्लड प्रेशर को कैसे कम किया जाता है? सहज योगा के साथ, प्राणायाम के साथ, मेडिटेशन के साथ,
ये सारे तरीके हैं जिससे कि आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो मानसिक स्तर पे तो आप सच में ये सारी बातों को करें तो अच्छी बात है, लेकिन शारीरिक स्तर पर भी आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर ना हो तो बड़ा मुश्किल होता है। इन चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, बात बात पे गुस्सा आएगा आपको, ठीक है। तो मेन यही है कि तालमेल हमें प्रकृति के साथ रखना है और हमें सहज योगा का मतलब हुआ सहज भाव रखना है। तो सहज भाव जब हमारा होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी कि मुझे दूसरों के प्रति अप्रिसिएशन भी होगा, दूसरों से लगाव भी होगा, प्यार भी होगा, उसकी सारी गलतियों को हम अलग तरीके से देखेंगे, उस पर हम रिएक्ट नहीं करेंगे। तो हमारा बिहेवियर जो है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो जाएगा, एक जिम्मेदाराना व्यवहार हमारा हो जाएगा। तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? Thank you, sir, for giving me this opportunity to speak here about. सर एक्चुअली मैं पेशेंट्स के ऊपर बोलना चाहूँगा। एक्चुअली मेरी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। जैसे मेरी फैमिली में भी ज़्यादा कोई ऐसा एजुकेटेड नहीं है, तो मैं सोचता था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। तो मैं अभी 6th क्लास में हूँ, अभी मेरे को तो 8-10 साल लगेंगे पढ़ने के लिए। तो मैं जैसे तैसे मेरी 10वीं हुई तो मैंने सोचा मैं पढ़ाई छोड़ता हूँ, मेरे से नहीं हो रही, मैथ वैथ समझ में नहीं आती। तो काफ़ी फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट करा, पढ़ ले, अच्छा है, अच्छी ज़िंदगी मिलेगी आगे। तो मतलब पेशेंस की कमी थी मेरे अंदर। मैं बहुत जल्दी फ्रीडम चाहता था कि पैसा आए, अपनी लाइफ जियो जैसे बड़े लोग जीते हैं, ऐसे करके। तो मैंने ठीक है, मैंने 11th में आर्ट्स ली और मैंने 11th-12th की अपनी, और अब लगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है लाइफ, आगे काफ़ी एक्सप्लोर हुए, अच्छे अच्छे टीचर्स मिले। जैसे पहले मैं गांव में पढ़ता था तो उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। जैसे मैं दिल्ली में आया तो देखा कि अगर इम्पेशेंस लोगों के साथ रह के इम्पेशेंस हो जाते हैं, एसोसिएशन मैटर करता है काफ़ी। तो पेशेंस जिन लोगों के अंदर है उनके साथ रहा, उनसे बात करी, काफ़ी स्पिरिचुअल लोगों के साथ भी रहा, और स्कूल में भी काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं, उनसे बात करी कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होती है मेरे को। तो कॉलेज में आ गया अब मैं स्कूल से, तो अब उन टीचर्स को थैंक यू बोलता हूँ कि थैंक यू फॉर गाइडिंग मी। अब मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, अब अच्छा सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन के लिए पढ़ रहा हूँ। तो मतलब एक पहले पर्पस था खुद को लेके कि मैं खुद के लिए मैं ऐसे करूँगा, अब है कि मैं खुद के लिए नहीं, मैं लोगों की हेल्प करूँगा अपने सब्जेक्ट से। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि एसोसिएशन के ऊपर बोलना चाहूँगा कि एसोसिएट उन लोगों के साथ करो जिनके अंदर पेशेंस हो। और मैं भी इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मेरे अंदर भी पेशेंस है, बट टीचर से सबने ऐसे पॉइंट बनाए, मैं अपनी लाइफ में उन्हें हटाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। एक हमारे फैकल्टी हैं, उन्होंने कहा था पिछली बार गोष्ठी में कि ये जो सोशल मीडिया है, अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो सोशल मीडिया का अच्छा पक्ष आप ले लोगे, अगर आपकी कंपनी गलत है तो उसका बुरा पक्ष में आप फंस जाओगे, है ना। तो कंपनी मेक्स द डिफरेंस। ओके, बहुत अच्छी बात कही। मैं अब चाहूँगा कि एक मिनट हर लोग सिर्फ 1 मिनट में इस बात को बताएं कि जो निचोड़ है उनका, वो उस निचोड़ के आधार पे क्या संदेश देना चाहेंगे वो इस मामले में कि कैसे आप अपना डेवलप कर सकते हैं इस स्किल को। निधि माथुर। जैसे सर ने कहा, कैसे हम इनकलकेट कर सकते हैं हाउ टू बी पेशेंट इन लाइफ, हाउ टू डेवलप पेशेंस इन लाइफ। सो आई थिंक मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप आइसोलेट कीजिए अपने आप को, सोचिए कि किन किन बातों पे आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, और इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि आप किन किन बातों पे इम्पेशेंट हो गए, किन लोगों से आपने रूडली बात की, और क्या आप अपनी लाइफ में सुधार ला सकते हैं टू डेवलप पेशेंस। सो आई थिंक, एंड दिस इज़ व्हाट आई डू। ऑफिस जाने के बाद रात में जब मैं अकेली होती हूँ
तो मैं तो अपने लिए टाइम निकालती हूँ कि आज पूरे दिन में मैंने क्या किया और क्या क्या किन किन चीज़ों में मैं इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ फ्यूचर में. सो दिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट टू द व्यूअर्स. तुमसे एक सवाल है कि यू आर ए प्रोलिफिक डांसर, ठीक है, यू हैव परफॉर्म्ड एट वेरियस ओकेजन्स. ये डांस जो है ये क्या ये कोई रोल प्ले कर रही है? इट्स ए वंडरफुल हॉबी. क्या ये रोल प्ले करता है तुम्हारे पेशेंस को डेवलप करने में? सर डांस का बहुत बड़ा रोल है पेशेंस को प्ले करने में भी और मेरी लाइफ में भी. सर बचपन से लेके आज तक मतलब डांस मेरी जो हॉबी है, तो सर मैं उसको मतलब ओकेजनली ऐसे करती नहीं, मैं सीखती भी नहीं कभी. मुझे बचपन से वो चीज़ होती है ना, मतलब महसूस करी है मैंने उसको. तो डांस ऐसे रोल प्ले करता है कि हम लोग जब भी डांस कर रहे होते हैं तो एक्सप्रेशन देना, जो हमारी लाइंस आ रही हैं गाने में, मतलब व्यूज़ आ रही हैं तो उस पर एक्सप्रेशन देना, या फिर स्टेप्स अच्छे से नहीं हो रहे तो उसको सही से करना. तो छोटी छोटी चीज़ें, इसमें पेशेंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. इनफैक्ट अगर आप परफॉर्म कर रहे हो स्टेज पे तो मान लो कि अगर मतलब आप भूल जाते हो स्टेप्स, होता है जनरली ये चीज़, तो उस टाइम पे आप कैसे उसको पेशेंटली संभालोगे? क्योंकि सर मतलब मैं जब भी परफॉर्म करती हूँ तो मैं एकदम रैंडमली करती हूँ, तो उसका कोई वैसा होता नहीं कि मैं पहले से प्रिपेयर करके आ रही हूँ. तो जब मैं रैंडमली परफॉर्म करती हूँ तो बहुत मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन सामने वाले को कभी पता नहीं चलता कि मैंने गलतियाँ करी हैं स्टेज पे. तो ये चीज़ होती है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे, कि आपने पेशेंस खोकर सामने वाले को ये नहीं बता दिया कि आपने गलती कर दी और उसको पता भी नहीं चला है, क्योंकि आपने अपने एक्सप्रेशन और अपने आप को उतना पेशेंट रखा है कि हाँ मैं कर लूँगी स्टेज पे, अभी भी संभाल लूँगी उस चीज़ को. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. हमारे बीच में मधु मैम हैं. इन्होंने पेंटिंग में महारत हासिल किया है हाल फिलहाल, और पेंटिंग एक ऐसी हॉबी है जिसमें बिना पेशेंस का तो काम हो ही नहीं सकता. तो पेशेंस ने कितना सहयोग किया है पेंटिंग में, और पेंटिंग ने कितना सहयोग किया है आपके पेशेंस में, तो इसके बारे में 1 मिनट में अगर आप कुछ बता पाए. Thank you, sir, for this question. It's a very important question. Actually, in COVID lockdown, everyone has got this quality of patience, as some of our students have shared. So that was the time that we were confined within the home, and what to do with the time, and waiting patiently for a good time when this lockdown is over and we are able to lead our normal life. So at that time I thought, let me utilize my time. So this is the very constructive use of that time that I did at the COVID lockdown time, and I started doing painting. And for this I have to learn a lot, because I used to feel very helpless where I wanted to paint a cloud, I wanted to paint the waterfall. I was not able to make the kind that I wanted to paint. But gradually, with patience, I looked at other videos, how others are doing, and I looked at the nature more carefully and with patience. Then I started realizing that I am able to improve my paintings in drawing and in painting. So that was the role played by the patience and the painting. Both of them were joining together in bringing better paintings. Thank you, sir. Okay, well, we have my young friend here. I liked his one particular question very much. He said that our teachers, they tell us to study, but they don't tell us how to study. Okay, what to study they say, but how to study they don't say. So that I very much I appreciate his such kind of approach. Well, here also the same thing, how to develop patience. Do you have anything to say? तो पेशेंस में जैसे सर अभी सबको माइक पास कर रहे हैं कि 1 मिनट में इन शॉर्ट आपने जो भी बोला वो मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हो, तो मैसेज यही है कि जब भी किसी भी सिचुएशन में आप हो, आपको एकदम से मतलब जो फर्स्ट थॉट आता है, ऐसा नहीं कि उस पहले थॉट के गुलाम बनकर वो थॉट उस थॉट को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके वो वर्ड्स बोल दो, बिल्कुल नहीं. आपको हर एक इंसान के नज़रिए से उस सिचुएशन को देखना है और फिर एनालाइज करना है विथ योर कंप्लीट विजडम कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ
क्या वो मतलब मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें, या फिर इम्पेशेंस के साथ मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सिर्फ मेरा खुद का नज़रिया, मतलब कि मेरे को तकलीफ हुई तो मैंने एज ए ईगोइस्टिक इंडिविजुअल बोल दिया कि क्या यार क्यों तंग कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो। मैंने ये नहीं देखा कि उसकी भी अर्जेंसी थी और वो मेरे पास एक हेल्प के तौर पे आया था कि भाई थोड़ी हेल्प कर दे। तो आपको हर एक इंसान के नज़रिए से देखना है, आपको ये हैबिट इंडल्ज करनी है। तो अगर आप ये हैबिट इंडल्ज करते हो कि बहुत सारे थॉट्स में से आप सबसे टॉप क्वालिटी वाले थॉट्स को अपने माइंड में जगह दो, तो यस इससे मतलब आप बहुत ही अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे। सो दैट्स माय पॉइंट। Wonderful, wonderful. Adding on to my friend's point here, and in short, how to develop patience for a student. So I would say that we are constantly surrounded by many influential people, but as Vikas said, that we have to be with people who are good people so that we also become good. So my suggestion to my friends would be that make a friend who is good. किसी अच्छे सच्चे दोस्त के पास जाओ और अपना ऑनेस्टली उससे पूरा दिनचर्या शेयर करने की ट्राई करो कि मैंने सुबह मैं उठा, मैंने ये किया, आई वेंट टू कॉलेज, आई वेंट होम, आई डिड माई होमवर्क। बट उसमें ऑनेस्टली शेयर करना है कि कहाँ कहाँ पे हम इम्पेशेंट हो गए थे, कहाँ कहाँ पे हमने अपने ऊपर गिव अप कर दिया, कहाँ कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते थे। ये सब चीज़ें आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, सो यू विल बी वेरी फ्री कि दिस इज़ माई ट्रुथ एंड यू कैन इवन हेल्प मी। तो दूसरा बंदा आपको हेल्प भी कर पाएगा। If you are not an extrovert and you don't have friends, the second option is you can talk to your parents because you trust them and they will guide you the best way. That this was my day, I messed up in this places, please help me. Asking for help is not a bad thing. Another thing which is very important, which you can do academically, is journal writing. That you start daily, write a journal, maintain a journal and write honestly that this was my state of life in this moment. मैंने इस चीज़ में ऐसे रिएक्ट किया, क्या कुछ इसका और ऑप्शन हो सकता है, और उन ऑप्शंस पे एक्ट करने के लिए गोल्स बनाएं और उन पे एक्ट करें। थैंक यू। I would like to add on what Nidhi ma'am has just said कि पेशेंस को डेवलप करने के लिए स्पेंड सम मी टाइम। अपने आप को आइसोलेट कर सकते हो। सपोज यू आर नॉट एबल टू आइसोलेट फॉर अ मैरिड वुमेन, बिकॉज आप आइसोलेट होना चाहते हो बट योर हस्बैंड डोंट वांट यू टू बी आइसोलेटेड। उसको लगता है कि आप आइसोलेट होगे तो कुछ गलत करोगे, मे बी यू विल डू समथिंग बिकॉज आफ्टर फाइट। तो कीप अ टोटेम, it can be anything, it can be meditation or it is a focus point, keep a focus point। तो मैं क्या करती हूँ, आई लाइट अ कैंडल, जो ऐसे स्लो बर्निंग वाला कैंडल होता है ना। वैसे संध्या का टाइम जो है वो बाती का टाइम भी होता है, लाइट कैंडल लाइट करो, उस पर फोकस करो। वो आप जब कैंडल जल रहा होता है वो आपके मन को भी इट शाइन्स योर हार्ट ऑल्सो, एंड वो रिफ्लेक्शन आपके मन में आता है कि आप भी एक कैंडल जैसा हो। तो जिस तरह से कैंडल मेरे लिए एक फोकस पॉइंट है, हर किसी का अपना अपना अलग फोकस पॉइंट हो सकता है। तो create that totem in you so that you always have जो ठहराव कहते हैं, ग्रिड कहते हैं, वो रहे। तो मेरे साइड से कि पेशेंट्स को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है, जैसे मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में मेरी पूरी फैमिली में किसी ने साइंस साइड के अलावा कॉमर्स तक नहीं लिया था, और मैंने 12th में ये बोला कि मुझे साइंस साइड मैं नहीं कर सकती। मैंने सीधा ये बोला कि मैं साइंस साइड नहीं कर सकती और कॉमर्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आर्ट्स लेनी है क्योंकि मुझे कुछ गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो मेरी फैमिली, मेरे मम्मी एकदम नर्वस हो गई कि मतलब कैसे, ये तो फिर बेइज्जती वाली बात है कि मतलब सब तुम्हारे फैमिली में इतने एजुकेटेड है, सबने साइंस लिए, तुम आर्ट्स लोगी। तो वो मेरे लिए बहुत टफ़ था उस टाइम पे कि अपनी, क्योंकि हम बाहर किसी से भी लड़ सकते हैं लेकिन अपनी फैमिली से नहीं लड़ सकते, वही पेरेंट्स से तो बिल्कुल नहीं। तो वो मेरे लिए बहुत टफ़ टाइम था कि मैं अपनी मम्मी के ख़िलाफ़ जाके मैंने पेशेंस रखे और मैंने आर्ट्स लिया। और उस टाइम पे मम्मी ने भी पेशेंस दिखाया कि मम्मी ने कहा चलो ठीक है, कोई कुछ भी कहे, तुम्हारा जो मन है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो मम्मी का एक पेशेंस था, उनका एक सपोर्ट था कि उसके बाद अब जब मैंने बीए किया, मैंने अपना आर्ट्स लिया और उसके बाद फिर मैंने हिंदी ऑनर्स में अपना इंटरेस्ट दिखाया,
तो उसके बाद अब मम्मी ने अपना पेशेंस दिखाया, मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है, तुम खुश हो, तुम अगर जो करना चाहती हो वो कर सकती हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही चीज़ करें। और ये भी नहीं है कि हम आज ये वीडियो के थ्रू सबको समझाना चाहते हैं तो सब कोई समझेगा, क्योंकि ये अपने अंदर से वॉइस आनी चाहिए कि हमारे अंदर पेशेंस रखना है, हमें खुद को चेंज करना है। क्योंकि कोई कितना भी मोटिवेट करे, वो 2 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, इससे ज़्यादा कोई मोटिवेट नहीं होता। तो हमें खुद के अंदर से ये वॉइस आनी चाहिए कि हमें खुद को मोटिवेट करना है कि हमें कैसे पेशेंस रखने हैं, कैसे खुद को समझाना है और कैसे लाइफ में अपना पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। सर मेरे को लगता है कि मेरे को नहीं लगता कि सभी कहते हैं सर कि अगर आप किसी से, जैसे अभी मैं आपसे मिला तो आपको कुछ तो आपने मेरे को 5 मिनट इंटरेक्शन हुआ तो मैं आपसे ज़्यादा तो बात नहीं कर सकता और नहीं आपके पास टाइम है। जैसे रीडिंग है तो रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है। जैसे कोई काफ़ी विद्वान लोग हैं, उन्होंने बुक लिख दी है, तो मेरे हिसाब से रीडिंग हमें करनी चाहिए रोज़। रीडिंग से क्या होता है, हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, पूरी बुक में एक बंदे की मतलब किसी की भी लाइफ होती है, तो वो जो बताता है तो आप 10 बार भी पढ़ सकते हो उस बुक को। तो मेरे हिसाब से रीडिंग एक एसोसिएशन है। जैसे आपने बुक लिखी और मैं आपकी बुक पढ़ रहा हूँ, तो मैं आपका एसोसिएशन ही कर रहा हूँ एक तरीके से, आपके वर्ड्स का, आपके थॉट का, आपकी लाइफ का। तो आपके अंदर जो जो हैबिट थी पेशेंस की, आप वो निकाल लो और मतलब इन्होंने ये करा अपनी लाइफ में, ये करा। तो मेरे हिसाब से रीडिंग बहुत अच्छी हेल्प करती है पेशेंस के अंदर। तो हमें पेशेंस के लिए रीडिंग करनी चाहिए। और भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं रीडिंग के। बस, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। Well, I consider this conversation as a most useful, most successful one, in the sense that we were able to, extract your thoughts, your feelings straight from your heart. दिल से बात हुई, जो आपने अपने ज़िंदगी में महसूस किया उसको आपने सहज तरीके से उसको एक्सप्रेस किया। बहुत कम ऐसा मौका होता है जिसमें कि हम इस तरह की बातें कर पाते हैं। वेरी यूज़फुल, एंड आई थैंक यू ऑल फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। थैंक यू।